yesterday we have done the writer Clemens Brook, okay, and today we are going to discuss the writer F.R. Lewis. F.R. Lewis. F.R. Lewis. देखना ना सही आ रहा है कैमरा में, सही आ रहा है. F.R. Lewis, the writer from associated with the writer from Cambridge or Oxford? Cambridge. American School of Linguistics. He's known for giving his theories in American School of Criticism, dealing with American School of Criticism. American School of Criticism. तो क्लेनेथ ब्रूक जैसे हम लोग देखे थे, द राइटर फ्रॉम द न्यू क्रिटिसिज्म ऑल्सो. और क्लेनेथ ब्रूक का कौन कौन सा वर्क देखे थे हम लोग? बेल ब्राउटर, द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, 1947 publication. And today we are going to deal with the writer F.R. Lewis, the greatest writer ever in literary theory. ठीक है, as he is associated with the American School of New Criticism. Clear? अब F.R. Lewis का जब बात करें तो मेनली F.R. Lewis जाना जाता है किस लिए? For what he is known for? He is known for what? He is known for the journal Scrutiny, which was founded in the year 1932, है ना? Scrutiny. Publication देखने लो थोड़ा, publication याद रखना. 1932 publication, है ना? Scrutiny. It's a journal. और इसमें न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड बहुत सारा अपना बात बताया है. इन दिस जर्नल स्क्रूटनी ही हैज टॉक्ड अबाउट द थ्योरीज, है ना, his compositions and many things about related to new criticism, American School of Criticism. Clear? और इसमें क्या क्या बात किया है स्क्रूटनी में? और क्या क्या बात किया है? When he was propounding his composition, he was dealing with his composition in scrutiny, so he was totally against a group called Bloomsbury Group. ये किसका ग्रुप था? द ग्रुप ऑफ वर्जीनिया वुल्फ. और कौन थे? और कौन था? लियोनार्ड वुल्फ कौन है? हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ. ओके. बेल, है ना, क्लाइव, पता नहीं रेनिसा बेल, और पता नहीं कौन और भी बहुत सारे राइटर्स हैं. मेनी राइटर्स फ्रॉम दिस ग्रुप. एम फॉस्टर वाज आल्सो देयर, है ना, देयर मेनी अदर राइटर्स. अब देखो, he is known for giving his theory called great tradition. He was dealing with the theory called great tradition. ये देख लेना, वर्जीनिया वुल्फ, लियोनार्ड वुल्फ, अनीटा वेल, वेल, दो, है ना, हस्बैंड वाइफ, वो भी दो थे. फिर क्या बोलते हैं, एम फॉस्ट, द राइटर ऑफ द विच बुक? बताओ. एम फॉस्टर, पैसेज टू इंडिया, 924 पब्लिकेशन. याद आ रहा है कुछ? चलो. Great tradition. He is known for giving his theory on great tradition. Tradition is also talked by which writer? T.S. Eliot in the work Tradition and Individual Talent, publication 1920. समझ में आ रहा है? क्लियर? एक चीज सबसे पहले ये चीज और नोट करना, है ना, इसका वर्क नोट कर लेना. एक तो ग्रेट ट्रेडिशन, ये एक तो वर्क हो गया ये ग्रेट ट्रेडिशन, और दूसरा कौन सा वर्क है? बताओ. क्रिटिकल एसे कॉल्ड द वेस्टलैंड, है ना. क्रिटिकल एसे कॉल्ड द वेस्टलैंड. And he has written the number of books dealing with the theories, है ना, dealing with the new criticism. But out of which I have selected two only, which is most important from the point of view of net. That's why I have selected this, right? So critical essay called the Wasteland. Who has written the Wasteland? T.S. Eliot. So it is an upgraded version of T.S. Eliot. आप ऐसे नहीं बोल सकते. कहने का मतलब कि T.S. Eliot जो लिखा है The Wasteland, T.S. Eliot has written the work called Wasteland, the collection of poem Wasteland,
है ना. पब्लिकेशन 1920 22 है ना. in the magazine called Criterion or Egoist. In 1922 it was published in England in Criterion, and in United States in Egoist. And in 1923 it was republished by Virginia Woolf in the publication Hogarth Press, which is also the part of Bloomsbury Group. Clear? 1923. Now अब देखना, जो वेस्टलैंड में जो बात किया है, there are 5 parts of wasteland. याद है? What are the name of all those parts? Burial of Dead, Game of Chess, then the Fire Sermon, Death by Water, and what the Thunder Said. Chronology में याद रखना. This is also a question. Okay. So the Wasteland published in 1922. Okay. So Wasteland में जितने भी ये बात किया है, तो Wasteland is also known for, है ना, कि most critical poem ever written by T.S. Eliot in modern literature. T.S. Eliot जो इसको लिखा है, T.S. Eliot the writer, है ना, T.S. Eliot born in 1888, okay, died in 1965. T.S. Eliot the writer, modern literature. समझ में आ रहा है ना. तो T.S. Eliot जब ये लिखा था तो बहुत सारे जो मिथ्स हैं उसको अप्लाई करना, अलग अलग वर्क से कुछ कुछ लाइन उठाना, है ना. इट इज ऑल्सो नोन फॉर डीलिंग विद पैस्टिक और मेनी अदर थिंग्स. बहुत सारी चीज को इधर उधर से लाया, एक जगह कंपाइल किया, एंड ही टर्म्ड दिस ब्यूटीफुल पोएम कॉल्ड द वेस्टलैंड. और बहुत जगह से मिथ को अप्लाई करना, बहुत सारे लाइन से लाना, अलग अलग जगह से लाना, है ना. अस्टर्नबर्न-गर्सी आइसलैंड, अस्टर्नबर्न-गर्सी लेक, फिर मैडम सुसॉस्ट्रीस, है ना, कैरेक्टर्स, और बहुत सारे इंडियन मिथ से भी डील करना, जर्मन मिथ, मतलब बहुत सारे चीज को एक जगह लाकर ये क्या क्या कंपाइल किया, कंपाइल्ड, है ना, डिफरेंट मिथ्स एंड डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड. Okay, and he termed this beautiful poem called the Wasteland. That is why it is known for dealing with his complexity. समझ में आ रहा है. क्रिटिकल वर्क माना जाता है. तो इस पोएम को पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है. अगर तुम इसको पढ़ोगे तुम्हें शुरू से ही पता चलेगा. फिर the cruelest man breathing lilacs out of the dead, the starting line you will find the starting line, and the second line when you will reach up to the second line you will feel you are totally confused with the upper and the lower line. Okay, why? Because the most complicated one, most critical one. Clear? तुमको पता चलेगा. तो इसी ऐसे को प्रॉपर पढ़ने का तरीका, कि एग्जैक्ट ये क्या बोलना चाह रहा था, प्रॉपर पढ़ने का तरीका इसमें बताया है. द क्रिटिकल ऐसे कॉल्ड द वेस्टलैंड बाय व्हिच राइटर? F.R. Lewis. Okay, clear? This is dealing with the work called the Wasteland. Clear? Now, what is Great Tradition? Great Tradition क्या बताया था इसमें? Great Tradition is also somehow taken, है ना, got influence from the work of T.S. Eliot. That the work called Tradition and Individual Talent. Tradition and Individual Talent. कुछ याद आ रहा है? इसको पब्लिकेशन लिख लेना. ग्रेट ट्रेडिशन में पब्लिश्ड इन द ईयर 1948. बेल ब्राउटन पब्लिश्ड इन द ईयर 1947. 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी पब्लिश्ड इन द ईयर 1930. बहुत बढ़िया. ठीक है. 1948 ग्रेट ट्रेडिशन. क्लियर? एंड दिस वाज इंस्पायर्ड बाय द वर्क्स ऑफ T.S. Eliot. Which work? The work of AC. Which work? Tradition and Individual Talent. Publication 1920s के करीब वो पब्लिश हुआ. ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. उसमें बताया था कि ट्रेडिशन होता क्या है. When T.S. Eliot was talking about the tradition, she told that you should not just go and imitate the classical writer blindly. क्या बोला कि जाओ और जाकर ब्लाइंडली इमिटेट मत करो. आई एम नॉट गोइंग टू, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम जाओ और पूरी तरह से कॉपी कर लो, इमिटेट कर लो, वही स्टाइल को, वही एक्सप्रेशंस को, सब कुछ को कॉपी कर लाकर तुम लिख दो, एंड यू आर टेलिंग टू द वर्ल्ड दैट आई एम डीलिंग विद द ट्रेडिशन, आई एम नाउ अ ग्रेट राइटर. ऐसा नहीं बोला था. क्या बोला था? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, व्हाट डिड ही से व्हेन ही वाज कंपोजिंग, है ना, व्हेन ही वाज डीलिंग विद द वर्ड ट्रेडिशन. देखो, जैसे मान लो हम लोग स्टार्ट करें लिटरेचर में, तो जैसे मान लो फॉर कौन सा जॉब? चौसर एज. क्लियर? चौसर से भी पहले ले लेते हैं. चलो,
ग्रीसो रोमन पीरियड, ग्रीसो रोमन पीरियड, फिर आ गया चौसर। हम अभी ऐसे ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, फटाफट। चौसर एज, फिर उसके बाद देखते हैं जो भी एज आता है ना। चौसर के बाद फिर वो डार्क एज, फिर है ना कौन सा, एलिजाबेथन, फिर जैकोबियन, कैरोलिन, प्यूरिटन, फिर जितना भी जो भी है चलता जाता है, ठीक है। मान लो एक हम लिया एलिजाबेथन, है ना, एलिजाबेथन, फिर मान लो रोमांटिक, ठीक है, रोमांटिक, फिर आ गया मान लो मॉडर्न, ठीक है। अब सपोज तुम करो मॉडर्न एज का तुम राइटर हो, यू आर नाउ राइटर, यू आर शुभम, यू आर राइटर फ्रॉम द मॉडर्न एज, तुम मॉडर्न एज का राइटर हो। अगर तुम मॉडर्न एज का राइटर हो, ठीक है, तो तुम क्या बोल रहे हो अपने आप को कि हम जो है पूरी तरह से मॉडर्न एज का है, हम मॉडर्न लिखेंगे सब कुछ। और जब भी हम मॉडर्न लिखेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द राइटर्स रेफरेंसेस, कुछ भी हम नहीं लेंगे। तुम मॉडर्न एज का राइटर हो, तुम लिखना, तुम बोल रहे नहीं नहीं हमको कोई मतलब नहीं है, आई विल नॉट टेक एनी रेफरेंस फ्रॉम द राइटर्स लाइक दिस, फ्रॉम द राइटर फ्रॉम द चौसर एज, रोमांटिक एज, जो भी है, हम किसी से रेफरेंस नहीं लेंगे। यू आर डीलिंग विद ओनली मॉडर्न एज। तुम सिर्फ बोल रहे हो मॉडर्न एज, हम बस हम जानते क्या है मॉडर्न एज, जानते कुछ नहीं जानते। इट मीन्स यू आर अ गुड राइटर और नॉट, और तुम अच्छा भी लिख रहे हो बाय यूजिंग फ्री वर्स, which is the greatest feature of the modern age, by using free verse. Who is the father of free verse? Washington Irving, है ना, the writer from American literature. फ्री वर्स, तुम फ्री वर्स में अपना स्टाइल लिखने लगे और लोग पसंद भी कर रहे हैं, and the whole world is telling you that you are a good writer, you are writing, है ना, in your own way, you have developed your own sense. Like when Emily Dickinson came there in United States, okay, when she started writing, she broke the tradition of the style of the poetry, है ना, the style of the poetry. क्या बोली कि नहीं नहीं, एलिजाबेथन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, जो भी है, जितने भी पोएट्स हैं सब क्या थे, मेल डोमिनेटेड पोएट्स थे, मतलब सोसाइटी चल रहा था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और जितने पोएट्स थे सब सारे कौन थे, मेल थे। और मेल ही हमेशा बताएं क्या कि ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, यू शुड यूज मीटर, यू शुड यूज दिस टाइप ऑफ टेक्निक, सो and the matter which is concerned with the female, so they are the male only, they are dealing with, they are raising the issues of the female in their own words. So when Emily Dickinson came there, she told that कि कौन हो तुम लोग, हमारा इशू तुम लोग क्यों, तुम लोग कैसे बता सकते हो, हमारा इशू तो हमको पता होगा, है ना। तो बोली क्या कि तुम लोग जिस तरह पोएट्री स्टाइल में लिख रहे हो, हम उस ट्रेडिशन को तोड़ते हैं। दैट्स व्हाई शी स्टार्टेड, है ना, राइटिंग बाय यूजिंग सम एक्स्ट्रा पंक्चुएशन मार्क, कॉमास, एंड एक्स्ट्रा, है ना, पन। She is known for that. Emily Dickinson. And when we were dealing with Emily Dickinson in American literature, we have discussed all those things. Clear? So सब कुछ हम लोग देख चुके हैं वो सब। अब जैसे तुम अपना स्टाइल स्टार्ट किए, have now started dealing with your own style. फ्री वर्स में लिखना स्टार्ट किया, बोले अरे यार बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है हमको लिखने में, है ना। दूसरे लोग देखें तो बोले क्या क्या तुम लिखता है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, आप अगर लिटरेचर पढ़, क्योंकि आप कुछ लिख रहे हैं तो यू आर नॉट द पार्ट ऑफ लिटरेचर। अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आपका बुक में थोड़ा सा ये झलक ही नहीं रहा है, ये भी नहीं झलक रहा है, ये भी नहीं झलक रहा है, ये भी नहीं झलक रहा है, कुछ भी नहीं झलक रहा, आपका सिर्फ अपना एज का चीज झलक रहा है, कुछ भी नहीं झलक रहा है। मतलब क्या, आप अच्छा नहीं लिख रहे हैं, आप अच्छा लिख नहीं रहे हैं। आपका पहचान कैसे, आपका पहचान सिर्फ आपसे खुद है क्या? कहने का मतलब बताओ, जैसे तुम अपने घर में रह रहे हो, तुमको सिर्फ तुमसे जानता है, या तुम्हारे पापा से जानता है, तुम्हारे दादा से जानता है, तुम्हारे परदादा से जानता हो, या फिर तुम्हारे कोई और रिलेशन हो उससे जानता हो, या फिर फैमिली में कोई ऐसा आदमी हो जो कि फेमस हो उससे जानता हो। बताओ, अकेला तुमको कोई जानता है? नहीं जानता है। तुम्हारे फादर से जानता है, तुम्हारे दादा से जानता है, तुम्हारे और भी रिलेटिव है, कोई फेमस है, ये है वो, जो कुछ भी है, तो कहीं से तो जानता है तुमको। तुम अकेला तो नहीं जाने जा रहे हो, अपने तरीके से थोड़ी जाने जा रहे हो, तुमको सबके द्वारा जाने जा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये सब तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये क्या बोलता है, टी.एस. एलियट क्या बोल रहा है कि आप हम ये नहीं बोल रहे हैं, टी.एस. एलियट has not mentioned even when he was dealing with his poem, sorry, in his essay tradition and individual talent, when he was writing, तो ये बोल रहा है क्या कि
I'm not telling that you should follow the classical writers blindly. हम ये नहीं बोलते कि पूरी तरह से फॉलो करो उसको, नहीं, तुमको ये करना ही नहीं है, पूरी तरह से नहीं करना। उसमें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए? Dead writers, this is the line. Dead writers should be mirrored. Should be mirrored. मर गए जो राइटर्स हैं, ठीक है, वो भी तुम्हें झलकना चाहिए, तभी तुम अच्छा पोएम लिख रहे हो, अच्छा वर्क लिख रहे हो, योर वर्क इज एक्चुअली अ गुड वन, अदरवाइज नहीं। ब्लाइंडली कॉपी भी करने नहीं कर रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, जब भी आप वर्क लिख रहे हैं तो आपने झलकना चाहिए कि नहीं आप लिटरेचर से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। आप जब भी लिटरेचर पढ़ते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ तुम ग्रीसो रोमन पीरियड और एंग्लो सेक्सन चौसर एज और सिप इलिजाबेथन मान लो सिप इलिजाबेथन एज पढ़ के तुम नेट निकाल लोगे क्या? तो जब नेट इलिजाबेथन एज पढ़कर निकाल ही नहीं सकते हो, सिर्फ रोमांटिक एज पढ़कर नेट निकाल लोगे या फिर कोई भी एग्जाम? बताओ कैसे निकालोगे जब तक आप ट्रेडिशन में नहीं आएंगे। कौन सा ट्रेडिशन? द ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द होल ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एंड व्हेन यू आर नॉट taking a part in the part of English literature, the history of English literature, it means you are not concerned with the subject, you are not concerned with the tradition, you are almost dead. आपका अस्तित्व है ही नहीं फिर पोइट्री में, आपका अस्तित्व है ही नहीं फिर लिटरेचर में। सो टी एस एलियट हैज टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, ठीक है। अब ग्रेट ट्रेडिशन में क्या बोल रहा है, what he is telling, the writer, name the writer, F.R. Lewis। भूल जाते हो क्या? देखो अब ग्रेट ट्रेडिशन ये क्या बोल रहा है, ग्रेट ट्रेडिशन पब्लिकेशन 9, ये बार बार याद करा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड इट बीइंग आस्क्ड अगेन एंड अगेन। ओके, सो ग्रेट ट्रेडिशन में क्या बोल रहा है कि जो भी बात किया गया ट्रेडिशन में है ना, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, टी.एस. एलियट के द्वारा जो ऐसे जो लिखा है उसमें जो बात किया है, क्या एक ट्रेडिशन, एक ग्रेट ये ट्रेडिशन किसको बोल सकते हैं भाई? टी.एस. एलियट किसको अच्छा बोल सकते हैं? ट्रेडिशन में है, ठीक है। तो जो ट्रेडिशन में बात, जो ट्रेडिशन के बारे में ये जो डेफिनेशन दिया, जो बात किया कौन? टी.एस. एलियट। उसी को ये बताकर ये आगे बढ़ाकर क्या बोल रहा है, क्या कि जो भी इस ट्रेडिशन में आते हैं वही ग्रेट राइटर कहलाएंगे, वही ग्रेट राइटर्स कहलाएंगे। मीन्स उनमें डेड राइटर झलकने चाहिए, अपना हो लेकिन साथ साथ डेड राइटर्स भी झलकने चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ तुम ट्रेडिशन से बिलो, तुम अलग दुनिया से नहीं आए हो, यू आर नॉट डीलिंग विद एलिनेशन लाइक थिंग, मीन्स यू आर नाउ कनेक्टेड विथ योर वर्ल्ड, विद द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, वर्ल्ड ऑफ क्रिटिसिज्म। क्लियर? सो ग्रेट ट्रेडिशन जब ये बोल रहा था तो क्या बोला कि ग्रेट ट्रेडिशन में क्या बोला, ग्रेट राइटर्स आप कैसे बनेंगे जब आप ग्रेट ट्रेडिशन को फॉलो करो। ग्रेट ट्रेडिशन को कौन फॉलो करता है? जो कि ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है। And I have introduced you with a term called tradition, the definition by T.S. Eliot. Clear? Clear? Now, in the book Great Tradition, he talks about what he meant by the tradition. He says that there are few great English novelists and 4 main novelists he selected in the beginning. और इसमें बोल रहा है कि according to F.R. Lewis क्या बोल रहा है कि मेरे अनुसार कुछ ग्रेट राइटर्स मेरे अनुसार मेरे को अच्छा लगते हैं, कुछ ग्रेट राइटर्स है ना। व्हाट आर द नेम ऑफ द ऑल दोज राइटर्स? हाउ मेनी राइटर्स ही हैज सेलेक्टेड? बोलो 5 नेम। Jane Austen, जॉन ऑस्टिन, George Eliot, बहुत अच्छा। Henry ये राइटर्स को याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया भी है, पूछेगा भी शायद, ठीक है। बोलो Jane Austen, द फर्स्ट जेन ऑस्टिन है ना, जेन ऑस्टिन। the second George Eliot, जॉर्ज एलियट राइटर फ्रॉम विक्टोरियन एज, जेन ऑस्टिन राइटर फ्रॉम रोमांटिक, याद रखना 1725। ओके, जॉर्ज एलियट फ्रॉम द राइटर फ्रॉम विक्टोरियन एज, मैरियन इवांस द निकनेम, द पेन नेम। ओके, थर्ड वन क्या? हेनरी जेम्स द राइटर फ्रॉम America, हेनरी जेम्स। हम ये क्या लिख रहे हैं?
हम उस राइटर्स का नाम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू एफआर लेविस। कौन कौन से उनके अकॉर्डिंग टू एफआर लेविस कौन कौन से ग्रेट राइटर हैं उसके अनुसार, एफआर लेविस के अनुसार। सो ही टुक द नेम ऑफ जेन ऑस्टिन फर्स्ट, ओके, देन जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स, फोर्थ वन Joseph Conrad, जोसेफ कॉनराड, बहुत अच्छा, and also the D.H. Lawrence. जोसेफ कॉनराड, 5 D.H. Lawrence. डीएच लॉरेंस, बहुत अच्छा, डीएच लॉरेंस। ये राइटर याद रखना, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनराड एंड बोलो D.H. Lawrence. डीएच लॉरेंस। out of which है ना, he told that Jane Austen according to me is the greatest writer ever। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू एफआर लेविस क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू एफआर लेविस जेन ऑस्टिन जो है सबसे ग्रेटेस्ट राइटर है among all these writers। क्लियर? हाँ, कोई दिक्कत? चलो, और तो जितने भी मेन चीज है, क्योंकि बिकॉज इट्स अ रिवीजन सेशन, सो आई डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स अबाउट द राइटर एफआर लेविस। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रेट ट्रेडिशन इंक्लूड मोरल पर्पस। Great tradition include moral purpose is also told by F.R. Lewis in the Great Tradition in कौन सा book? A Great Tradition। great tradition. So we are done with the writer, I mean with his theory, and tomorrow we will be meeting soon with another session, dealing with another